So here we are discussing the role and responsibility of the community health officer in the clinical side. First is clinical functions of the community health officers. Community health officers will provide clinical care as specified in the standard treatment guidelines for the range of services expected at the health and wellness centers. So जितनी भी सर्विसेज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर दी जाती है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, वो सभी सर्विसेज क्लिनिकल केयर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू एक प्रॉपर और स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिटी के लोगों को दी जाएगी, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। जल्दी से प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद पर्सन्स को फर्स्ट लेवल पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सेकंड, अंडरटेक रेफरल टू एनेबल कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर। रेफर सर्विसेज का भी यूज़ किया जा सकता है उस पर्सन को और बेटर केयर देने के लिए, सभी फैसिलिटी के साथ पेशेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। थर्ड, प्रोवाइड फॉलोअप केयर। पेशेंट को फॉलोअप की सुविधा भी दी जाएगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू। प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट, साथ ही साथ पेशेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग काउंसलिंग की मदद भी दी जाएगी। लास्ट इज फैसिलिटेट टेल कंसल्टेशन। Facilitate teleconsultation, or you can say telemedications for the community person. Now we are discussing the first point of the clinical function, that is first point is early detection, screening and first level management in a detailed form. So here we are discussing what are the responsibility of community health officers and what they will do. First is undertake detailed history, physical examination of patients to assess the general signs and symptoms of the identify a disease condition. Community health officer will take full history of the patient and physical examination of the patient with respect of the physically, and he or she will identify the diagnosis with the help of the patient's sign and symptoms. Next is identified and provide the first level management for all conditions covered under the 12 essential packages of services and various national health programs. जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसमें 12 एसेंशियल सर्विसेज पैकेज दी जाती है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू फर्स्ट लेवल पर पेशेंट को मैनेजमेंट के रूप में प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे पेशेंट को फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट वहीं पे उसको मिल सके। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के क्लिनिकल फंक्शंस में अभी आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई। सेकंड जो अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट था वो क्लियर हो गया है। सेकंड अब हम डिटेल में जानेंगे अंडरटेक रेफरल टू एनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर। सो हियर अंडरटेक रेफर टू एनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर। पेशेंट को कंटिन्यू सर्विस मिलती रहे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेफर सर्विसेज भी पेशेंट को ज़रूरत के अनुसार उसको प्रोवाइड की जाए। रेफरल सर्विसेज में जो रेफरल मॉडल है दैट विल बी लाइक दिस इन द लेफ्ट साइड। Community health officer will enter the patient's detail in referral slip or IT application. If there is a computerized entry, then community health officer will enter the patient's detail in IT application, and after this entry, he or she that means community health officers will give most adequate information regarding health facility to the patients according to that particular program, and after that community health officers will also give the informations about the referral services and their facilities with the transport facility to the patients and their relatives. And next is if there need to refer, then identify, provide the transfer facility to the patient for the better treatment. And one more thing, community health officers will provide pre-referral services like रेफरल से पहले पेशेंट को स्टेबल करा जाएगा, और पेशेंट के स्टेबल होने के बाद जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जहाँ पर पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा है वहाँ पे बेसिक लाइन इंफॉर्मेशन, रेफरल नेक्स्ट जहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है वहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के थ्रू
दी जाएगी, जिससे वो उसकी जो वहाँ पे पहुँचने के बाद पेशेंट की कंटिन्यू ट्रीटमेंट चलता रहे, वहाँ पे उसका स्टॉपेज ना हो, जिससे पेशेंट के वहाँ पहुँचने पर उसके ट्रीटमेंट में कोई देरी ना हो और ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता रहे। नेक्स्ट इन द राइट साइड एग्जांपल फॉर एक्टिव रेफरल सपोर्ट। एग्जांपल में देखते हैं कि किस किस पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है, जैसे हाई रिस्क केसेस, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल इमरजेंसीज एंड ट्रॉमा। हाई रिस्क पेशेंट को जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी या फिर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी या ट्रॉमा, ऐसे बहुत सारे हाई रिस्क केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट को तुरंत रेफ़र किया जा सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू। नेक्स्ट केसेस स्क्रीन पॉजिटिव फॉर NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज रिक्वायरिंग confirmations of diagnosis and initiations of treatment plan। इसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पेशेंट को जब डिटेक्ट हो जाती है या फिर कोई क्रोनिक इन्फेक्टिस जो डिजीज़ होती है वो पॉजिटिव रिपोर्ट में आ जाती है, तो उस पेशेंट को जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए पेशेंट को रेफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट केसेस एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर केयर, डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स that are not available at सब सेंटर्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ऐसे केसेस जिसमें ऐसे ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या फिर मेडिकेशंस की ज़रूरत हो जो कि सब सेंटर्स या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं हो पा रही हो, तो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज़ एबल टू रेफर द पेशेंट फॉर देयर बेटरमेंट। क्लिनिकल फंक्शंस में हमने फर्स्ट क्लियर किया अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। सेकंड क्लियर हो गए अंडरटेक रेफर टू एनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर। अब हम थर्ड में डिस्कस करेंगे प्रोवाइड फॉलोअप केयर। प्रोवाइड फॉलोअप केयर, follow-up can either be facility or home based on the requirement and condition of the cases. Here, community health officer is also responsible for the follow-up care because follow-up is totally based on the patient's requirement and condition of the case, and after that all the analysis, community health officers will provide follow-up care to the patient of the community areas people. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को कब कब फॉलोअप के लिए जा सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स सच एज हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्ट नेटल मदर्स विद कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, लो बर्थ वेट, डिस्चार्ज बेबीज, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कॉमन चाइल्डहुड इलनेस एक्सेट्रा। These all are the examples who requires follow-up care by the community health officers. Next, individuals suffering from chronic illness and hypertension, diabetes, tuberculosis, leprosy, etc. to assess treatment compliance, review parameters such as blood sugar, blood pressures, adherence to the lifestyles, modifications, timely detections of complications, etc. यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट कंप्लाइंस मीन्स ट्रीटमेंट के दौरान जब पेशेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर एडवाइस दी जाती है, वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ये देखता है कि वो उस चीज़ को फॉलो अप कर रहा है कि नहीं, उसको ओबे कमांड को फॉलो करता है या नहीं करता पेशेंट। अडेरेंस टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जब आप पेशेंट को फॉलोअप के लिए जाते हैं या फिर करने जाओगे तो आपको पहले देखनी पड़ती है उसने जो आप चीज़ें बोला था आपको पेशेंट की लाइफ में मॉडिफाई करने के लिए, वो उन्होंने किया है या नहीं किया है। ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू ये सब किए जाते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट वी आर डिस्कसिंग प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट। Provide counseling support for the following. Counseling is an important means to share information related to the disease management, enabling treatment compliance, educate individuals and families for the disease prevention and health promotion. काउंसलिंग के टाइम जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं उसी के थ्रू पेशेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसकी डिजीज़ कंडीशन के बारे में, उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है और जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको कैसे फॉलोअप करना होगा, और साथ ही साथ पेशेंट और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को समझाया जाता है कि
डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड की जाती है कि कैसे डिजीज़ कंडीशन से बचा जा सकता है और हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ये सभी हेल्थ केयर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस पेशेंट और पेशेंट्स के रिलेटिव्स को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू दी जाती हैं। रूटीनली एरिया कौन सा रहता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जहाँ पे काउंसलिंग दे सकते हैं? फर्स्ट है केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट, वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशंस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ स्पेसिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रेग्नेंट लेडी को भी काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है रिगार्डिंग दी एंटीनेटल एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। जब पोस्ट नेटल पीरियड पे जब बेबी डिलीवर हो जाता है, मदर को भी काउंसलिंग दे सकता है और बेबी को कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है दैट टाइम भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वहाँ पे इंफॉर्मेशन मदर को दे सकता है। एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन के बारे में बता सकता है, काउंसलिंग दे सकते हैं। फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ स्पेसिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, इसमें स्पेसिंग के बारे में भी एक जो कपल्स होते हैं इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल ट्रांसमिट जो डिजीज़ होती है उसके बारे में कैसे हम उसको प्रिवेंट किया जा सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड सब्सटेंस अब्यूज़, डाइट, एक्सरसाइज, इंजरी, वायलेंस, मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू काउंसलिंग की जाती है पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन को देखते हुए। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो पेशेंट्स की कंडीशंस को देखते हुए अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उनको गाइडलाइंस दी जाती है मॉडिफाई करने के लिए उसकी लाइफ के लिए। एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, अगर हो जाती है तो इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ये सब काउंसलिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के थ्रू दी जाती है और उसको फॉलोअप भी करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट टेल कंसल्टेशन। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। Facilitate telemedicine. Community health officers will also use teleconsultation as a part of clinical functions too. Community health officers telecommunicate करता है related to the treatment matter. Examples में देखते हैं, confirmation, continuation of treatment from the medical officer or specialist, especially useful during the first follow-up visit of the individual who has been recently initiated on treatment for the chronic disease. जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है कंफर्म करता है टेलीफोनिकली पब्लिक हेल्थ PHC मेडिकल ऑफिसर्स या भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे, जब एक पेशेंट क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र करता है तो उसके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए इट्स द राइट ट्रीटमेंट और नॉट फॉर द पर्टिकुलर कंडीशंस, then community health officer will get the answer via tel. Next, clarifications regarding provision of care when the condition is not serious and patient's time can be saved by obtaining treatment decision from the PHC medical officer or specialist. तो पेशेंट्स के टाइम को सिक्योर करने के लिए और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सही ढंग से कंटिन्यू रखने के लिए पेशेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पास अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है। और अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर PHC मेडिकल ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट से कंफर्म कर सकता है। नेक्स्ट, एडवाइस टू स्टार्ट प्री रेफरल स्टेबलाइजेशन फर्स्ट एड वेयर टाइमली इंटरवेंशंस आर नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एडवर्स आउटकम्स। पेशेंट्स को रेफ़र करने के दौरान
अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पेशेंट्स को रेफ़र करने से पहले स्टेबल करना या फिर फर्स्ट एड देना पड़ जाए, तो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टेल कम्युनिकेट PHCMO से कर सकता है एडवाइस लेने के लिए।